Welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Elementary Probability Theory. In this session, we'll be seeing sums which will be based on independent probability. So over here, the first question of this session, and actually it is question number 25. So over here, the question is, if A, B and C are independent events such that probability of A is 0.3, probability of B is 0.2 and probability of C is 0.1. Find the probability of simultaneous occurrence of all the three events. So over here, I'll say probability of A का value दिया है, probability of B का value and probability of C. So probability of A का value is ये है 0.3, then it is 0.2 है और उसके बाद 0.1. Now since A, B, C are independent events, so I'll say since A, B and C are independent events, the meaning of this is कि A, B, C are independent events and यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है find the probability of simultaneous occurrence of all the three events. Now since simultaneous occurrence मतलब ये होता है probability of A intersection B intersection C, and जब मुझे पूछा जाता है probability of A intersection B intersection C and since the events are independent, इसका मतलब हो जाता है probability of A into probability of B into probability of क्या आएगा C. So according to this ये हो जाएगा 0.3 into 0.2 into 0.1 and when we multiply this term तो ये हो जाएगा 0.3 into 0.2 into 0.1, ये हो जाएगा 0.006. So this is nothing but what? Probability of simultaneous occurrence of all the three events. So with this, question number 25 is done. Now we'll start with the next question, that is question number 26. So over here, questions. The probability that A will be alive 30 years hence is 0.4 and that B will be alive 30 years hence is 0.3. What is the probability that 30 years hence, first, both will be alive, second, only A will be alive, third, both will not be alive, fourth, at least one of them will be alive. So over here, I'll write the first condition, probability that A will be alive 30 years hence is equal to probability of हो जाएगा A. Therefore, P of A is equal to 0.4 हो जाएगा. Same way I'll write probability that B will be alive 30 years hence is equal to P of B. Therefore, P of B is equal to ये हो जाएगा 0.3. Now, यहाँ पे एक चीज समझना है, ऐसा नहीं है कि अगर A जिंदा रहेगा तो ही B जिंदा रहने वाला है या B जिंदा रहेगा तो ही A जिंदा रहने वाला है. So यहाँ पे A and B क्वेश्चन में it is not mentioned कि it is independent event. But since ऐसा नहीं है कि A जिंदा रहेगा तो ही B जिंदा रहने वाला है या B जिंदा रहेगा तो ही A जिंदा रहने वाला है, since ये सिचुएशन है कि यहाँ पे ये दोनों भी टर्म एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, therefore we say this is again what? A question which is based on what? Independent event. See, question में mention नहीं किया है, but looking at the condition we can understand कि A and B are indirectly क्या है? Independent event. So अभी probability of A मिल गया, probability of B मिल गया. अभी उन्होंने पूछा है कि probability that 30 years hence both will be alive. तो यहाँ पे इसके बाद मैं लिखता हूँ फर्स्ट कंडीशन,
probability that 30 years hence both will be alive. So this is equal to, ये हो जाएगा probability of A intersection B, and we need to understand since ये independent event है इसलिए ये हो जाएगा probability of A into probability of B, and ये हो जाएगा 0.4 into 0.3. कैलकुलेट किया we get 0.12 as the answer. ये हो गया फर्स्ट पार्ट. अब सेकेंड बोला गया है ओनली A will be alive. सो जब ये सिचुएशन आता है तो मैं यहां पे लिखूंगा सेकेंड प्रोबेबिलिटी दैट ओनली A will be alive, दैट इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. So probability of A है 0.4 minus 0.12, ये हो जाएगा 0.28. ये हो गया मेरा सेकेंड पार्ट. थर्ड कंडीशन इज probability that both will not be alive. तो इसका मतलब है probability that both will not be alive. इसका मतलब हो जाएगा probability of A dash intersection B dash. सिंस ये इंडिपेंडेंट है तो probability of A dash into probability of क्या हो जाएगा B dash. And how to find probability of A dash? तो मैं बोलूंगा it is 1 minus probability of A हो जाएगा into 1 minus probability of B हो जाएगा. So it is 1 minus 0.4 in one bracket into 1 minus 0.3 in the second bracket. So ये हो जाएगा 0.6 into 0. क्या आएगा 7. So this becomes 0.42. अभी ये जो कंडीशन है that is probability that both will not be alive. अब लास्ट पार्ट जो है that is the fourth part is at least one of them will be alive. So यहाँ पे I'll say my fourth part is probability that at least one of them will be alive. So मैं बोल दूंगा this is nothing but what? Probability of A union B, मैं ऐसा बोल सकता हूँ it is 1 minus probability of A dash intersection B dash, जिसको मैं लिखूंगा 1 minus probability of A union B the whole dash. इसका मतलब है 1 minus, अच्छा A dash intersection B dash डायरेक्ट ये लिखा तो भी चलेगा, तो मैं यहाँ पे सीधा लिख सकता हूँ इट इज 0. क्या आएगा 42. एंड व्हाट इज 1 minus 0.42, तो ये हो जाएगा 0. क्या आएगा 58. ये कंडीशन हो गया. एंड विद दिस क्वेश्चन नंबर 26 इज आल्सो डन. विल मेक अ नोट ऑफ दिस टू क्वेश्चंस. We'll start with the next question, that is question number 27. Probability that A can hit a target is 1 by 4 and probability that B can hit a target is 1 by 3. If both A and B try to hit a target independently, find the probability that first, the target remains unhit.
Second, the target is hit. Third, both hit the target. Fourth, only one of them hits the target. So यहाँ पे सबसे first condition I'll write is probability that A can hit the target is equal to P of A. फिर मैं लिखता हूं probability that B can hit the target is equal to P of B. Therefore, probability of A is equal to आएगा, probability of B is equal to आएगा. अच्छा, A का हिट करने का टारगेट इस क्या है 1/4, तो ये 1/4 हो गया, एंड B का हिट करने का टारगेट इज 1/3. अब आगे बोला गया है the target remains unhit. Now since they are telling A and B are independent event, तो मैं यहां पे लिखता हूं A and B are independent events. साथ में मैं लिख देता हूं therefore probability of A dash is also equal to 1 minus probability of क्या आएगा B. Probability of B dash is also equal to 1 minus probability of क्या आएगा B. ये हो जाएगा is equal to 1 minus 1/4, जो हो जाएगा 4 minus 1/4, ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 1 minus 1/3, तो ये हो जाएगा 3 minus 1/3 and this becomes 2/3. यहाँ तक समझा? So अब इसके आगे सिंस ये P of A हो गया, P of B हो गया, A dash हो गया और B dash हो गया, अब बोला है द टारगेट रिमेन्स अनहिट. अच्छा, ये A का हिट करने का चांस 1/4 है, तो इसका मतलब A dash का मतलब होता है द टारगेट इज अनहिट. अच्छा, B इज द टारगेट इज हिट, तो B dash बिकम्स द टारगेट इज व्हाट अनहिट. तो उन लोग ने फर्स्ट कंडीशन बोला है प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट रिमेन्स अनहिट. सो मैं यहां पे लिखता हूं प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट remains unhit is equal to probability of A dash intersection B dash. मतलब दोनों भी जन ने टारगेट हिट नहीं किया, तो यहाँ पे सिंस A and B are independent event, तो ये हो जाएगा probability of A dash into probability of B dash. तो this becomes 3/4 into 2/3. Here you cancel, this becomes 2/4 which is equal to ये हो जाएगा half. So this is the first part. अब यहाँ पे ही second part है the target is hit. Now when they say the target is hit, इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि टारगेट A ने हिट किया है, या फिर ऐसा हो सकता है टारगेट B ने हिट किया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टारगेट दोनों भी जन ने हिट किया है. सो ओवर हियर इन दिस सिचुएशन मैं ऐसा बोल सकता हूं ये है प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट रिमेन्स अनहिट. तो मैं लिखता हूं यहां पे प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज हिट. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा इट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश. क्यों ऐसा? क्योंकि ये है जहां पे टारगेट इज नॉट हिट, एंड ये सिचुएशन ऐसा है जहां पे टारगेट हिट होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा इट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश. तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 2 minus 1/2 एंड द आंसर फॉर दिस इज 1/2 वापस. उसके बाद आता है थर्ड केस. नाउ थर्ड कंडीशन सेज बोथ हिट द टारगेट. अच्छा, यहाँ पे क्या था द टारगेट इज हिट, इसका मतलब ऐसा हो सकता था कि खाली A ने हिट किया
या फिर ऐसा हो सकता है खाली बी ने हिट किया, या फिर ऐसा भी हो सकता है दोनों ने हिट किया। अब ये सिचुएशन थर्ड केस में आई वांट बोथ ऑफ देम टू हिट द टारगेट, तो यहां पे मैं लिखता हूं प्रोबेबिलिटी दैट बोथ हिट द टारगेट। सो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो दिस बिकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब ये हो जाएगा 1/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब 1/3, सो दिस बिकम्स 1 बाई क्या आएगा 12। ये हो गया थर्ड पार्ट। एंड दिस वन मोर पार्ट दैट इज द फोर्थ पार्ट, ओनली वन ऑफ देम हिट्स द टारगेट। सो अब यहां पे मैं लिखता हूं इट इज फोर्थ केस, प्रोबेबिलिटी दैट ओनली one of them hits the target. So this value is equal to, अभी only one of them hits the target का मतलब होता है A ने हिट किया तो उस टाइम पे B ने हिट नहीं किया, या फिर A ने हिट नहीं किया तो उस टाइम पे B ने हिट किया। सो दिस इज दैट कंडीशन। बट यहां पे एक चीज समझना है कि A इंटरसेक्शन B डैश, नाउ सिंस क्वेश्चन में बताया गया है कि इट इज A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट, एंड जब इंडिपेंडेंट इवेंट होता है तो उस टाइम पे इंटरसेक्शन का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगा B डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगा B। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A का वैल्यू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A का वैल्यू है 1/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश है 2/3 प्लस A डैश का वैल्यू है 3/4 एंड B का वैल्यू है 1/3। तो मैं यहाँ पे देखता हूं तो ये दिख रहा है 12 हो जाएगा, ये भी दिख रहा है 12 हो जाएगा। नाउ सिंस दिस बोथ द कंडीशन आर अपॉन में 12 है तो हम उसको कैंसिल नहीं करेंगे, तो इट इज 2/12 प्लस 3/12 एंड आई विल से दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 5/12। विद दिस क्वेश्चन इज डन, विल मेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन। We'll start with the next question, that is question number 28. Question is, a certain machine is made up of 3 independently working components A, B and C. The probability that these parts will go out of the order at a particular instant of time are 0.1, 0.3 and 0.2 respectively. What is the probability that the machine will work satisfactorily if it is assumed that machine works if first all 3 parts are working, second at least one part is working. So अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन है, सबसे पहले दिस इज क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे बोला है कंपोनेंट्स। सो आई विल से अ सर्टेन मशीन इज made up of 3 independently working components A, B and C. Probability that these parts will go out of order at a particular instant of time. So probability लिखूंगा that component A goes out of order बोलूंगा is equal to P of
ए आएगा. Probability that component B goes out of order इस probability of B हो जाएगा. Probability that component C goes out of order is equal to P of C हो जाएगा. अब यहाँ पे P of A का वैल्यू है, P of B का वैल्यू है, P of C का वैल्यू है. So P of A का वैल्यू है it is 0.1, 0.3, 0.2 ये वैल्यूज दी गई. नाउ अगर ये आउट ऑफ ऑर्डर के लिए कंडीशन है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं P of A dash इस प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब मैं बोलूंगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A. अच्छा, A जो है इट गोज आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब A डैश जो रहेगा दैट विल बी इन वर्किंग कंडीशन. आउट ऑफ ऑर्डर मतलब ये वर्किंग नहीं होगा, A डैश मतलब ये वर्किंग हो जाएगा. तो दिस बिकम्स 1 माइनस 0 पॉइंट क्या आएगा 1, तो दिस बिकम्स 0.9. वैसे ही मुझे ढूंढना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं लिखूंगा B डैश, ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.3, ये हो जाएगा 0.7. एंड सेम वे प्रोबेबिलिटी ऑफ C डैश लिखूंगा इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C आ जाएगा, तो दिस बिकम्स 1 माइनस 0.2, इट इज 0.8 हो जाएगा. सो अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है. नाउ क्वेश्चन में क्लियरली इट इज मेंशन 3 इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट कंडीशन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं A, B and C are independent events. Now since these are independent events, तो यहाँ पे फर्स्ट क्राइटेरिया है we need to find probability that the machine will work satisfactorily. All the 3 parts are working. तो फर्स्ट कंडीशन है probability that all the 3 are working is equal to probability of हो जाएगा A dash intersection B dash intersection C dash. तो ये हो जाएगा probability of A dash into probability of B dash into probability of C dash. तो उस हिसाब से ये हो जाएगा 0.9 into 0.7 into 0.8. ये सबको मल्टीप्लाई किया, we get the answer as 0.9 into 0.7 into 0.8, ये हो जाएगा 0.504. ये हो गया फर्स्ट पार्ट. नाउ द सेकेंड पार्ट सेज probability that at least one part is working. अच्छा, जब ये सिचुएशन आता है एटलीस्ट वन पार्ट इज वर्किंग, तो मैं बोल दूंगा दिस बिकम्स A यूनियन B यूनियन C, ऐसा बोल सकते हैं. या फिर मैं बोल सकता हूं इट इज सेम एज, नाउ एटलीस्ट वन पार्ट इज वर्किंग बोला है, तो मैं पहले एक काम कर सकता हूं, एक भी पार्ट नहीं चल रहा है ये ढूंढ लेता हूं. तो सिंस मुझे वन पार्ट इज वर्किंग बोला है, इट इज सेम एज क्या बोलूंगा 1 माइनस एक भी पार्ट नहीं चल रहा है. एंड एक भी पार्ट नहीं चल रहा है इसका मतलब है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन पार्ट इज वर्किंग. मैं ऐसा बोलूंगा यहाँ पे A जो है गोज आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब ये नहीं चल रहा है.
B जो है this goes out of order, नहीं चल रहा है. C जो है it goes out of order, मतलब ये नहीं चल रहा है. मतलब अगर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ढूंढा तो इसका मतलब होता है एक भी कंपोनेंट नहीं चल रहा है. एंड अगर मैं 1 में से माइनस कर दूंगा उसको तो इसका मतलब है कम से कम एक कंपोनेंट चल रहा है. सो आई एम राइटिंग इट एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. एंड सिंस ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C. तो उस हिसाब से ये हो जाएगा 1 माइनस A का वैल्यू है 0.1 इंटू 0.3 इंटू 0.2. ये हो जाएगा 1 माइनस 0.006 and this becomes 0.994. With this question is done. We'll make a note of this question. Next question is question number 29. If A, B and C are mutually exclusive events such that probability of A is 0.3, probability of B is 0.25 and probability of C is 0.15. Find the probability of occurrence of at least one of them. So यहाँ पे probability of A दिया गया है, it is 0.3. प्रोबेबिलिटी ऑफ B दिया गया है 0.25 एंड ये है 0.15, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ C. फिर मैं लिखूंगा सिंस A, B and C are mutually exclusive. नाउ सिंस ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, इसका मतलब इसके इंटरसेक्शन का वैल्यू इज इक्वल टू नल सेट. नल सेट मतलब क्या होता है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट वैल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा? 0. इसका मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये भी 0 हो जाएगा. B इंटरसेक्शन C, ये भी 0 हो जाएगा. A इंटरसेक्शन C, ये भी 0 हो जाएगा. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये भी क्या हो जाएगा? 0. अगर A और B में कुछ इंटरसेक्शन नहीं है तो B और C में भी कुछ नहीं है एंड A और C में भी कुछ नहीं है तो A B C में भी क्या आएगा? कोई भी इंटरसेक्शन पार्ट नहीं होगा. सो नाउ सिंस वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट one of them is equal to probability of A union B union C आ जाएगा. एंड मैं लिखूंगा therefore probability of A union B union C is equal to probability of A हो जाएगा प्लस B हो जाएगा प्लस C हो जाएगा माइनस probability of A intersection B हो जाएगा माइनस probability of B intersection C हो जाएगा माइनस probability of A intersection C माइनस प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन क्या आएगा? C. मतलब मैं ये फॉर्मूला याद रखने के लिए क्या बोलूंगा? एक एक के प्रोबेबिलिटीज को ऐड करो, दो के प्रोबेबिलिटीज को माइनस करो एंड तीनों के प्रोबेबिलिटी को वापस से ऐड करो. बट ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये सारे वैल्यूज क्या है? 0. क्यों? क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला है. सो दैट इज द रीजन यहाँ पे मैं लिखूंगा इसका वैल्यू है 0.3 plus 0.25 plus 0.15 minus 0 minus 0 minus 0 plus 0. So 0.3 plus 0.25 किया तो 0.55 होता है प्लस 0.15 किया तो ये हो जाएगा 0.70 एंड ये तो 0 0 ही है तो 0.70 is same as क्या आएगा? 0.7. So with this question is done. We'll make a note of this question. And we also end this section over here. Please revise whatever concept we have seen in this section and the sections earlier so that it will be easy for you all to understand the next part.
Thank you.